Importance of Lakshmikant polity as the date of the upcoming prelims 2020 has been announced for 4th October 2020, and so we all know the importance of polity in the prelims examination. Almost 20 to 25 questions are coming every year, and Lakshmikant is the savior. But mere reading of this book is not at all sufficient. Even if you will read this 2 or 3 times this book, you won't be able to solve all the questions. And we all have, once faced this same problem. That's why, on this channel we have come with a unique initiative of covering the whole Lakshmikant book through 1500 questions. And these questions will be segregated topic wise as well as chapter wise, so that you can read that Lakshmikant book and come and solve these questions. And the detailed discussions of those each and every questions will be there. And we have also given a due diligence to incorporate all the previous 25-year questions, that to topic wise and chapter wise. And if you'll listen the whole lectures, then whole polity will be covered, and make sure and I'll make sure that polity becomes a cakewalk for you. And there is one more thing, that prelims examination is less about reading and solving more and more questions. Everybody talks about solving more and more questions, but a few of them are there who will tell you the different tips and tricks that goes beyond solving such questions even you have just a fair idea about. इसीलिए इस सीरीज़ में हम ज़्यादा फोकस करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक्स की, ज़्यादा से ज़्यादा गेसिंग टेक्निक्स आपके अंदर डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे, सो दैट इवन इफ़ यू डोंट हैव इवन द स्लाइटेस्ट आइडिया अबाउट एनी क्वेश्चंस, यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विथ मच ईज एंड अपलॉम. तो ये हमारा पहला सीरीज़ होगा. और अगर इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ गुड एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड support this video, maybe such series will more and more such series will come. तो इसमें जो है हमारा क्या करना है इसमें कि ये डुअल लैंग्वेज में रहेगा. सो इवन फॉर द हिंदी एस्पिरेंट इट वॉन्ट बी अ मच प्रॉब्लम, बिकॉज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जो भी क्वेश्चंस डिस्कशन होगा इट विल बी इन बोथ द लैंग्वेज. और ये लक्ष्मीकांत जो है इसमें हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन ऑर्डर. जो है पहला टॉपिक जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज पार्लियामेंट. Why we have chosen this parliament topic? It's very easy to say, because parliament, because if 20 questions are coming from parliament, in polity, then almost 5 to 6 questions will be there from this topic. So in Lakshmikant polity also, the not whole Lakshmikant has to be read. Not whole Lakshmikant has to be read. Only certain sections of the Lakshmikant has to be read, because it's a very bulky 800-page book, and mere 200 to 300 pages of that book is important. So that is why we have categorized each and every topic according to the importance and according to the number of questions that are coming from them. So तो पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पार्लियामेंट होगा. पार्लियामेंट जो कि बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग इसमें मिनिमम 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो ये क्वेश्चंस वेराइट सोर्सेज से लिए गए हैं. एंड लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की एमसीक्यू की बुक है वो उससे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे. एंड दूसरा चैप्टर है पार्लियामेंट्री कमिटी, एंड देन द थर्ड इज पार्लियामेंट्री फोरम, सुप्रीम कोर्ट, एंड देन गवर्नर, एंड देन सिक्स्थ चैप्टर इज चीफ मिनिस्टर, and then we have state council of ministers and state legislature. Okay, so this is just the tentative list of the topics, and as we move on into the lectures, I will be adding more and more topics here. So today we will discuss, and I'll tell you, and each and every lecture will be around 30 to 40 minutes, and we will be discussing 25 to 30 questions and each and every lectures. And maybe this is the introductory lecture, that's why it will be a bit larger, or but in the coming lecture I'll make sure that each and every 30 minutes will be given to each lectures, and 25 to 30 questions will be discussed. In detailed discussion will occur in each lectures. And one more thing I'll tell you, when you solve this question there will be 4 options, right? Even if you know the answers, then you should also go and check other options, because what happens that in UPSC has the knack of setting papers through other options. Okay, so we will make sure कि here we discuss all the 4 options that is given in the MCQs.
Okay, so starting with this parliament, today we are going to discuss about 25 questions. So the first question for you today is, on the screen we have first question. Let's read this question. And one more thing, I'll read this question and then I'll give you then you can pause this video and solve this question. And after reading the question, after 1 or 2 seconds, I will start discussing the question and then I'll tell you the answer. But you should pause the video and write your answer, and then you can match later. And you can also share your answers in the comment sections, and you can tell me how many questions were you able to correct from this topic. Okay, so the first question is, consider the following statement: a bill pending in Rajya Sabha. So this question is related to pending of the bill in Rajya Sabha, which has not been passed by Lok Sabha. The bill has not been passed in Lok Sabha, shall lapse on dissolution of Lok Sabha. So what the question is, if a bill is pending in the Rajya Sabha and it has not been passed by Lok Sabha, okay, shall lapse on the dissolution of Lok Sabha. क्या बिल लैप्स करेगा अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो? दूसरा ऑप्शन है, ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट shall lapse by reason of prorogation of house. क्या अगर हाउस प्रोरोग होता है तो क्या बिल लैप्स होगा, ये बताना है. तो आप लोग आंसर दीजिए. इसका आंसर है, मैं देता हूं डी है आंसर इसका आंसर डी क्यों है? क्योंकि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कोई भी बिल, पहली चीज ये कि व्हेन डज अ बिल लैप्स, ए बिल विल ओनली लैप्स ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा. तो यहाँ प्रोरोगेशन ऑफ लोकसभा दिया हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज अ बिल विल नेवर लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन ऑफ लोकसभा. आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताइए कि प्रोरोगेशन ऑफ लोकसभा को हु प्रोरोग्स द houses of Lok Sabha? You can write in the comment section. And second question is, tell me the difference between prorogation and dissolution. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? You can just write in the comment section. तो पहला तो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन होना चाहिए. दूसरा चीज़ क्या है, अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है एंड इफ इट हैज नॉट पास थ्रू द लोकसभा, इट विल नॉट बी डिसॉल्व, सॉरी, इट विल नॉट लैप्स. तो ये लैप्स नहीं करेगा. लैप्स कब करता है? I'll tell you the tricks for this. कि any bill that either went out of Lok Sabha or and it came into the Lok Sabha after being passed through the Rajya Sabha, on dissolution of Lok Sabha it will lapse. तो इसका आंसर डी होगा. मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज ट्राई राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. तो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट मतलब राज्यसभा, और द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल. House of the people is also known as Lok Sabha, or person acting as such shall not vote at any sitting of the either house of parliament or joint sitting of the house at first instance. So, but shall have and exercise a casting vote in case of an equality of votes. So this option is about the presiding officers का voting pattern. It is very much important. जो presiding officers of लोक सभा और राज्यसभा होते हैं, they have a very unique pattern that is different from that of the MPs, other MPs. तो ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है. क्या वो सिर्फ कास्टिंग वोट देता है in case of equality of vote? दूसरा ऑप्शन है, a person is qualified to fill a seat in the council of state, that is राज्य सभा, or house of people, that is लोक सभा, if he is not less than 25 year of age. इसका ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए. Try to answer this question. I'll discuss it. इसका आंसर होगा A, only one. क्यों होगा only one? ये सही बात है कि obviously the presiding officers of both the house of the parliament just has casting vote. उनका सिर्फ casting vote होता है, और वो सिर्फ equality of votes जब होगा तभी वो वोट करेंगे. ऐसा क्यों किया जाता है? Because he is a speaker and he has bipartisanship role. Bipartisanship role in the sense that he cannot be from one party. Obviously he belongs to a party, but he has to remain as neutral as possible. That is why it has made compulsory कि he should only vote casting vote, give casting vote. And there are only one provision, then he can vote like a normal people during when the subsidiary motions, during the time of जब उसको हटाया जा रहा हो स्पीकर को या
चेयरमैन को जब हटाया जा रहा हो, उसकी रिजोल्यूशन चल रही हो, प्रीसीडिंग चल रही हो पार्लियामेंट में, ओनली इन दैट केस ही एक्ट लाइक अ नॉर्मल मेंबर एंड ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने साल का होना चाहिए, इन द सेंस दैट ही इज नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, कि 25 ईयर क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। सी द क्वालिफिकेशंस फॉर लोकसभा इज 25 ईयर्स एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर्स। तो दोनों का ये बता रहा है इस क्वेश्चन में 25 ईयर्स होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि फॉर लोकसभा ओनली इट इज राइट, इट इज 25 ईयर्स, ही हैज टू बी मोर देन 25 ईयर्स, एंड फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट द एज लिमिट इज 30 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। Third question is, since the sum required to meet the expenditure described by the Constitution of India as expenditure charged upon the Consolidated Fund of India. So what they are talking about, charged expenditure on the Consolidated Fund of India. तो चार्ज एक्सपेंडिचर की बात कर रही है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। तो देखिए दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, वन इज चार्ज एक्सपेंडिचर, अनदर इज मेड एक्सपेंडिचर। सो चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रही है। आर नोट सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, नो हाउस इज कॉम्पिटेंट टू डिस्कस दिस एस्टिमेट। क्या बोल रहा है कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उस पर कोई वोटिंग नहीं होती है, इसीलिए कोई हाउस उस पर डिस्कस नहीं कर सकेगा। तो पहला ऑप्शन है ये। दूसरा है, एनुअल फाइनेंशियल बिल प्रोवाइड्स अ लीगल ऑथोरिटी फॉर द विथड्रॉल ऑफ सन फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि एनुअल फाइनेंशियल बिल जो है लीगल ऑथोरिटी देती है कि आप मनी विथड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन द सेंस दैट एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी है एनुअल फाइनेंशियल बिल। तो आप इसका आंसर दीजिए। आई विल टेल यू द आंसर। इसका आंसर होगा डी। नाउ व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। देखिए पहली बात है कि कॉन्सोलिडेटेड, हमारे यहाँ जो यूनियन गवर्नमेंट हैज 3 फंड्स, फर्स्ट इज कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, राइट। सो एंड देयर आर two expenditure, that is first is charged upon the consolidated fund of India. Charged upon the consolidated fund of India में क्या होता है, they are not submitted to the vote of parliament. You cannot, it is not submitted to the vote of parliament, but discussion can occur, डिस्कस किया जा सकता है। और चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसके सैलरीज एंड पेंशन होते हैं, जजेस के सैलरीज, दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड देयर डिप्टीज के सैलरी इन द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। तो ये वो सारे चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं और यू कैन नॉट वोटिंग नहीं होती है उस पर, मगर डिस्कशन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन में बोला है कि नो डिस्कशन, यहाँ देखिए ये बोला है कि नो हाउस इज कंपिटेंट टू डिस्कस दिस एस्टिमेट, इसीलिए गलती हुआ बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। दूसरा बोला है एनुअल फाइनेंशियल बिल लीगल ऑथोरिटी देता है। अब देखिए कोई बिल है, अनलेस एंड अनटिल बिल बिकम्स एन एक्ट इट कैन नॉट गिव यू अ लीगल ऑथोरिटी। एनुअल फाइनेंशियल बिल तो कभी लीगल ऑथोरिटी देगा ही नहीं। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इफ यू हैव टू विदड्रॉ द मनी इट हैज़ टू बी एप्रोप्रिएशन बिल। तो इसीलिए ये गलत है कि ऐसे भी बिल है, इट हैज़ टू बिकम अ एक्ट। तो ये पहला बात तो ये फाइनेंस बिल दिया हुआ है, फाइनेंस बिल सिर्फ टैक्सेशन मैटर्स के लिए लाया जाता है, दैट टू फॉर द नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पे क्या होगा, एप्रोप्रिएशन बिल होना चाहिए, इसीलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन फॉर रिमूविंग ए डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमें पता है कि डेडलॉक हो जाता है। अब रिमूविंग डेडलॉक, डेडलॉक जब होता है तब हम क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। तो इसमें आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन देना है, ये बताइए कि किस बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल्ड फॉर विच बिल, आइदर इट्स ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल। ओके, तो इसमें देखते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग, ये डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन है, आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय 1 हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, अगर बिल एक हाउस में पास होकर दूसरे हाउस में जाता है, प्रेसिडेंट में नोटिफाई द हाउस हिज इंटेंशन टू समन देम फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग। तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा कब, इफ पहला ऑप्शन है द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, दूसरा है द बिल हैज फाइनली डिसएग्रीड, द हाउस हैज फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, और तीसरा है मोर देन 3 months हैज बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट। अगर 3 महीने तक किसी दूसरे हाउस जहां बिल गया है वो पास नहीं किया है। बताइए आंसर इसका। अब देखिए इस पार्टिकुलर केस में हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। अगर आपको ये पता है कि व्हेन इज ज्वाइंट सिटिंग कॉल्ड एंड ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल्ड इन केस ऑफ डेडलॉक एंड 6 महीने तक, सो मैक्सिमम टाइम लिमिट इन विच अदर हाउस कैन कीप द बिल स्टॉल्ड इज 6 months।
तो तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ्स दिया है, तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत। तो तीसरा ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कीजिएगा ऑप्शन से, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए तो यू विल गेट द आंसर दैट इज बी। अब अदर 2 ऑप्शंस भी देखते हैं क्या है कि देखिए देयर आर थ्री इंस्टांसेस इन विच डेडलॉक कैन ऑकर। 3 इंस्टांसेस हैं। अगर द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, विथहोल्ड कर लिया जाता है। सेकंड थिंग इज हाउस हैज फाइनली डिसएग्रीड टू द अमेंडमेंट टू द मेड टू द बिल, कि अमेंडमेंट अगर किसी हाउस ने बोला है, दूसरे हाउस ने बोला है कि सच एंड सच अमेंडमेंट हैज टू बी देयर इन द बिल एंड अदर हाउस डज नॉट एग्री टू इट, इन दैट केस ऑल्सो डेडलॉक ऑकर। और तीसरा केस है 6 months have elapsed and the other house has not taken any consideration of the bill. So there are 3 instances. तो आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिया गया था, बताइए कि किस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है। ये 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट इज करेक्ट। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताइए कि what is the present condition of railway budget and general budget, has it been merged with the general budget और अभी भी हम separate budget ही लाते हैं। और ये बताइए कि कब ऐसा किया गया था, अगर जो भी चेंजेस लाया गया है, some changes has been brought in, tell me what changes has been brought in and in which year it has been brought in। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ क्या है कि tell me about the reason of separation of railway budget from the general budget, क्यों हटाया गया था। एक चीज़ और बताइए कि ये कब हटाया गया था। When was railway budget? ये मैं बता देता हूँ आपको, चलिए। The railway budget was separated from the general budget in 1921 and there was a committee which recommended for the separation of railway budget from the general budget. You will have to tell the name of that committee. Now reading the option कि क्या रीजन है रेलवे बजट और जनरल बजट हटाने का। पहला ऑप्शन है टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट, कि रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, वो मनमर्जी अपना फाइनेंस मैनेज कर सके, टू फैसिलिटेट बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी, बिजनेस अप्रोच लाने के लिए, और टू सिक्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द रेलवे रेवेन्यू फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू सो दैट द गवर्नमेंट कैन गेट अ एश्योर्ड और अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द ईच ईयर फ्रॉम द रेलवे रेवेन्यूज, या to enable the railway to keep their profit on their own development, or to provide more and more autonomy to the railway so that they can keep some profit for their own development. So tell me the answer guys. इसका आंसर होगा D. अब you can pause the video and then write your answer, solve this question and then I'll discuss. देखिए इसका आंसर सभी होगा कि क्योंकि सारे रीजन, ये चारों रीजन जो मेंशन किए हैं ऊपर, those are all important जो सेपरेट किए गए थे। और अभी का कंडीशन क्या है आप लोग को देना है, मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। छठा क्वेश्चन है, द एक्सेप्शनल ग्रांट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज। अब एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें व्हेन यू रीड द लक्ष्मीकांत देयर आर सर्टेन सेक्शंस दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। लाइक बजट वाला सेक्शन है एंड यू विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज, क्योंकि इसमें देखते हैं कि अप्रोप्रिएशन 6 स्टेजेस होते हैं बजट पासिंग के, और उसके बाद बजट पास होने के बाद भी क्या होता है कि इफ़ देयर इज मोर एंड मोर मनी इज रिक्वायर्ड बाय एनी मिनिस्ट्रीज देन सर्टेन ग्रांट्स आर देयर, जैसे एक्सेप्शनल ग्रांट होता है, बोट ऑन क्रेडिट होता है, देन सप्लीमेंट्री ग्रांट इज देयर, एडिशनल ग्रांट इज देयर। तो देयर इज सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो क्यों दिया जाता है, तो इसीलिए एक्सेप्शनल ग्रांट पे क्वेश्चन है क्या होता है। एन एडवांस ऑन अकाउंट, ये है एन एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर द वोटिंग ऑफ ए ग्रांट। ये बताइए कि ये क्या है, एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर एनी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि एडवांस दिया जाता है। क्या एक्सेप्शनल ग्रांट वो है जो एडवांस दिया जाता है चूंकि बजट अभी तक पास नहीं हुआ है, है ना। पेंडिंग कंप्लीशन प्रोसीजर ऑफ वोटिंग फॉर ग्रांट, वोटिंग फॉर ग्रांट नहीं हुई है तो क्या होता है। दूसरा है ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ इंडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस विच कैन नॉट बी स्टेटेड इन विद डिटेल्स। तीसरा है ग्रांट फॉर्मिंग नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, क्या ये है ग्रांट फॉर्मिंग नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। या चौथा, ए ग्रांट मेड व्हेन अ नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग अ करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विसेज। बताइए ये क्या होता है। आई विल टेल यू द आंसर, इसका आंसर होगा सी। अब हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि वो क्या है। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है ये बोट ऑन अकाउंट का डेफिनेशन है, इट्स नॉट एक्सेप्शनल ग्रांट। बोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि इफ while the budget is being passed so no money is allocated, तो इसीलिए पहले ही हर एक मिनिस्ट्री को 1/6 ऑफ द मनी ऑफ देयर बजट
the money is provided, grant is provided to be more precise, so that the normal functioning of their department can take place. तो इसीलिए पहला जो है वो किसका डेफिनेशन है, वोट ऑन अकाउंट का। अब है अनएक्सपेक्टेड नेचर, अनएक्सपेक्टेड नेचर हो सकता है तो वो एडिशनल ग्रांट होता है कुछ। और ये चौथा डेफिनेशन जो है ये सप्लीमेंट्री, इट इज़ द definition of a supplementary grant. You can go refer Lakshmikant book, or if you'll tell me, I can also make a video on that, so that the understanding of that these concepts have become easy for you. You can mention in the comment section. अगला है the provision for contingency fund of India results in, पहला ऑप्शन है contingency fund of India होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, तीन फंड्स होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वो 3 फंड कौन होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट मैनेज करती है। पहला है एब्जॉर्बिंग द एग्जीक्यूटिव, क्यों बनाया जाता है, प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का। पहला है एब्जॉर्बिंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या वो एब्जॉल्व कर देता है एग्जीक्यूटिव को कंटीजेंसी फंड के कारण, या आपको एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं बनाना है। दूसरा है कंपेलिंग द लेजिस्लेचर टू अप्रूव द एक्सपेंडिचर, क्या वो कंपेल करता है लेजिस्लेचर की अप्रूव करे एक्सपेंडिचर को। या तीसरा है रिड्यूसिंग द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। या फोर्थ है प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी वॉल टू टाइट ओवर अ क्राइसिस। बताइए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर होगा डी। बेसिकली कंटीजेंसी फंड जैसे नाम से ही आप बता सकते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन होता है इन विच एवरीथिंग इज देयर इन द नेम, जस्ट बाय रीडिंग दैट पार्टिकुलर हेडिंग ना यू कैन आंसर द क्वेश्चन। कंटीजेंसी फंड इन द सेंस, कंटीजेंसी का मतलब ये होता है कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में या डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। सो वही है, इट प्रोवाइड सेफ्टी वर्क्स टू टाइड ओवर अ क्राइसिस। कंटीजेंसी फंड के बारे में और कुछ जानते हैं। कंटीजेंसी फंड किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के पास पावर होता है, एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही मनी विड्रॉ कर सकते हैं। एंड मोर द कॉर्पस ऑफ 500 करोड़ इज देयर फॉर द कंटीजेंसी फंड, एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी holds the power to withdraw the money from there. Okay? अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ABC क्या है कि एब्जॉल्विंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर। दिस इज एब्सर्ड स्टेटमेंट। द होल पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ फंड इज, वेदर दिस इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इज टू हैव द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विद द लेजिस्लेचर. We have 3 organs of government, legislative, executive and judiciary, and each and every government जो होता है वो checks and balance others, right? So that there is not arbitrary power with any of the government, any of the levels of government, right? तो इसीलिए arbitrary power ना हो, इसीलिए check and balance का है। तो यही contingency fund है बैलेंस करने के लिए, ताकि एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री पावर ना कंपेल कर सके, अराइज हो सके उसके पास। दूसरा कंपेलिंग द लेजिस्लेचर टू अप्रूव। अब कंपेल कैसे करेगा कि लेजिस्लेचर को अप्रूव करो, मतलब इट्स एब्सर्ड स्टेटमेंट। थर्ड इज रिड्यूसिंग द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। नो, इट इज नॉट फॉर रिड्यूसिंग, इट इज जस्ट इनहैंसिंग द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो ये भी गलत है, आंसर डी होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following tools of the control may be adopted for raising a discussions in the house on matter of urgent public importance? अगर बहुत ही जरूरी मैटर है तो कौन सा मोशन हम लाएंगे? पहला है सेंसर मोशन, दूसरा है एडजॉर्नमेंट मोशन, तीसरा है कॉलिंग अटेंशन मोशन और चौथा है कट मोशन। बताइए क्या होगा आंसर? मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा, टेल मी, पॉज द वीडियो एंड टेल, बी, एडजॉर्नमेंट मोशन। अब क्यों होगा? अब चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन लाया जाता है कि इन केस ऑफ सेंसरिंग एनी एग्जीक्यूटिव। पहले ये देखिए मोशन क्यों लाया जाता है। if कोई भी discussion in the parliament, if any discussion has to take place, it cannot be discussion on general public importance or any kind of discussion that is brought through a motion, and that motion is the motion is allowed by the presiding officer of that house, then only that discussion of that motion will take place, नहीं तो वो डिस्कशन नहीं होगा। तो सेंसर मोशन लाया जाता है टू सेंसर एनी एग्जीक्यूटिव इफ ही हैज गिवन सम रॉन्ग फैक्ट्स और ही इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली एंड ऑल, ठीक है। दूसरा है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन कब लाया जाता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है टू रेज द कंसर्न, टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर ओवर अ पार्टिकुलर इशू। तीसरा है एडजॉर्नमेंट मोशन, जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट, जो आंसर होगा इसका बी है, एडजॉर्नमेंट मोशन है। एडजॉर्नमेंट मोशन कब लाया जाता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन एंड राज्यसभा डज नॉट हैज द पावर टू इंडोर्स दिस मोशन। लोकसभा का पावर है और ये स्पेशल है। और इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 50 मेंबर्स का जो है रिजोल्यूशन चाहिए, इसमें एटलीस्ट 50 मेंबर का पार्टिसिपेशन चाहिए, देन ओनली यू कैन पास दिस एडजॉर्नमेंट मोशन। एंड 2.5 आवर मिनिमम डिस्कशन होगा इस पर, ठीक है। और चौथा है कट मोशन।
कट मोशन में क्या होता है कि इट्स बेसिकली टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ ग्रांट। हम देखेंगे 3 तरह के कट मोशन होते हैं, तो ये डिमांड ऑफ ग्रांट रिड्यूस करता है, आगे देखेंगे इसमें। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब इलेक्शन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे क्वेश्चन है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, in fact all are important questions। पहला है, the election of speaker shall be held on such a date as the prime minister may fix and the secretary general shall send to every house notice to this date। क्या इलेक्शन ऑफ स्पीकर उस दिन होता है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर फिक्स करता है? और दूसरा है, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर shall be held on such a date as the speaker may fix and the secretary general shall send to every house notice of this date। tell me the answer guys। इसका आंसर होगा, पॉज द वीडियो, टेल मी, आंसर बी होगा। क्यों है? देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फिक्स नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है, इसीलिए गलती हो गया। दूसरा है, हाँ ये सही है कि डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन डेट होता है दैट इज फिक्स्ड बाय स्पीकर ओनली, तो ओनली आंसर इज बी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज, which one of the following statement is not correct? Now here pay special attention guys, because not correct जो होता है we normally miss this thing। not correct हम नहीं देखते हैं, हम correct मार्क कर देते हैं और हमारा गलती सही हो जाता है। अगर मैं एक वन टिप फॉर टुडे इज, अगर आप सिर्फ ये गलती ना करें, नॉट करेक्ट वाला गलती ना करें, तो आपका स्कोर जो है प्रीलिम्स में इट कैन एनहांस बाय एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स। सो ये सिली मिस्टेक अगर जो भी होता है ना, नॉट करेक्ट के कारण ही होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, एन अप्रोप्रिएशन एक्ट इज नॉट एसेंशियल फॉर पासिंग अ ग्रांट अंडर द बोर्ड ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब अप्रोप्रिएशन एक्ट एसेंशियल नहीं है फॉर पासिंग अ ग्रांट अंडर बोर्ड ऑफ क्रेडिट। अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लोग लगाइए, क्या होता है इसका? रीअप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल ग्रांट। ठीक है, अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इट मीन्स दैट कि लक्ष्मीकांत का जो बजट सेक्शन है दैट इज नॉट क्लियर। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गो एंड रीड लक्ष्मीकांत। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी, आई कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग फॉर यू, बिकॉज आई एम हियर टू सिंप्लीफाई थिंग्स ओनली। तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आपके लिए वो बाय मेकिंग सर्टन वीडियोज ऑन दिस इंपॉर्टेंट टर्म, और आई कैन डिस्कस द होल पार्लियामेंट चैप्टर ऑल्सो, सो यू कैन write the same in comment section। तीसरा है, reprobation does not involve any additional expenditure। चौथा है, राज्यसभा has no power to vote on the demand for grant। ठीक है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता। चौथा ऑप्शन है, no amendment can be proposed in the appropriation bill in either house of the parliament। ठीक है, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए, नॉट करेक्ट में आंसर ए होगा। इसका आंसर ए है, 10th का आंसर क्या है? ए। अब डिस्कस करते हैं चारों ऑप्शन वन बाय वन। देखिए नॉट करेक्ट पूछा है, क्यों है आंसर ए कि अप्रोप्रिएशन एक्ट इज नॉट एसेंशियल फॉर पासिंग अ ग्रांट अंडर बोर्ड ऑफ क्रेडिट। देखिए कोई भी ग्रांट जो दिया जाएगा, ये ग्रांट जो दिया जाएगा विदाउट अप्रोप्रिएशन एक्ट में नहीं मिलेगा। तो अप्रोप्रिएशन एक्ट इज मस्ट फॉर एनी ग्रांट टू अकर। कोई भी ग्रांट मिलने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो ये गलत है। नॉट एसेंशियल कैसे होगा? ये गलत है। दूसरा है, रीअप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एडिशनल एक्सपेंडिचर। ये देखिए सही है। रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है कि मींस इफ यू आर स्पेंडिंग मनी यू आर गिवन फॉर वन पर्पज टू अनदर पर्पज, obviously some permission has to be taken for that, but that is what is reappropriation। it does not involve any additional grant, so additional, that is a right statement। third statement is Rajya Sabha has no power to vote on demand for grant, and it is right। Rajya Sabha cannot vote on the demand for grant। grant के लिए Rajya Sabha नहीं दे सकता है, वोटिंग नहीं करेगा, he can only discuss it। देखिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू लिसन दोस थिंग्स आल्सो वेरी सिंसियरली, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। और चौथा है, नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज इन द अमेंडमेंट बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ देखिए कभी कभी बोला जाता है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस आर ऑलवेज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ये डी ऑप्शन देखिए एक्सट्रीम ऑप्शन लग रहा है, बट इट्स राइट। नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज। अब अमेंडमेंट देखिए अप्रोप्रिएशन बिल में सही है कि अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं हम, यू कैन नॉट ब्रिंग अमेंडमेंट टू दिस and can be proposed in the appropriation bill either house of the parliament। why is that so? क्योंकि देखिए अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है बनाया ही जाता है विद ड्यू डिलिजेंस। सो मच ऑफ ड्यू डिलिजेंस इज टेकन इन फ्रेमिंग दिस अप्रोप्रिएशन बिल। पहले बहुत सारा डिस्कशन होता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट को कितना मनी ग्रांट करना है। तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाई नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज। तो 10th का आंसर होगा ए। अब 11th है, 11th का डिस्कशन करते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट एट लीस्ट, अब लोकसभा की मीटिंग के बारे में है, कब तक मिलेगा ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? थ्राइस ईच ईयर एंड नो मोर देन 2 months बिटवीन द सेशंस।
twice each year with no more than 3 months between the session, twice each year with no more than 4 months between the session, या twice each year with not more than 6 months between the session। बताइए आंसर। 6 मंथ दिया है, बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर डी होगा कि देखिए लोकसभा को एक साल में 2 बार मिलना ही मिलना होता है, मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो 6 महीना हो सकता है। जिसका अगला क्वेश्चन की आसान क्वेश्चन है, तो consider the following statement: the nature of a bill, if it is certified by the Speaker of the House of the People as a money bill, is not open to question in court of law। अगर सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस एज अ मनी बिल, अगर कोई भी कोई भी बिल है, अगर स्पीकर उसको बताता है मनी बिल है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, और यू कैन नॉट क्वेश्चन इट ऑन दैट व्हाई दैट स्पीकर इज टेलिंग दैट इट्स तो दैट इज व्हाई इट इज कि यू कैन नॉट जस्ट क्वेश्चन इट कि व्हाई द स्पीकर इज टेलिंग कि इट इज अ मनी बिल। ओके, तो देखिए। और दूसरा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्वेश्चन, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ अ बिल टू बी टेकन एज मनी बिल इवन इफ इट इज सर्टिफाइड टू बी सो बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। टेल मी द आंसर। इसका आंसर मैं देता हूं, इसका आंसर होगा ओनली 1। क्यों होगा ओनली 1 बताइए। इसीलिए होगा क्योंकि देखिए स्पीकर के पास जो है इट्स एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द स्पीकर टू स्पेसिफाई एनी बिल एज मनी बिल। रिसेंटली अगर आपको याद होगा कि आधार बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा बाय सेइंग दैट इट इज अ मनी बिल। तो मनी बिल जो है नोबडी कैन क्वेश्चन इट, एक्सक्लूसिव पावर इज with the speaker only, and Supreme Court also said that the power belongs to speaker, so that they can also they cannot intervene। दूसरा है the president of India, no how can president of India has such and such powers। तो president के पास भी पावर नहीं है, इसलिए आंसर ए है। 13 क्वेश्चन SSR रीजन है, देखते हैं। द एस्टिमेट दैट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर आप ये देखिए एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, शैल बी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ पार्लियामेंट, शैल नॉट बी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है। ठीक है, कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वोटिंग नहीं होता है। पार्लियामेंट इज नॉट इन पावर टू डिस्कस द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर नहीं है कि वो डिस्कस कर सके। रीजन ये है, बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं देता हूँ, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। देखिए इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर जो होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वोटिंग नहीं होती है उसमें, इंपॉर्टेंट पर्सन आप के उसमें सैलरीज होते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है डिस्कस किया जा सकता है, इसलिए रीजन रॉन्ग है। अब 14th आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। रूल ऑफ लैप्स क्या होता है, रूल ऑफ लैप्स क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऑल पेंडिंग बिल इन पार्लियामेंट लैप्सेस विद इट्स प्रोरोगेशन। आपको एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये दिया है ए में, ऑल पेंडिंग बिल इन पार्लियामेंट, रूल ऑफ लैप्स का मतलब होता है ऑल पेंडिंग बिल इन पार्लियामेंट लैप्स विद इट्स प्रोरोगेशन। दूसरा है ऑल अप्रोप्रिएशंस वोटेड बाय द पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं जो वोट किया जाता है वो एक्सपायर कर जाएगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तीसरा है ऑप्शन द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ अ मिनिस्ट्री लैप्सेस विद द क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स पॉलिसी बाय द अपोजिशन, कि जो भी ग्रांट है दिया गया है वो लैप्स कर जाएगा अगर अपोजिशन क्रिटिसाइज करता है। Appropriation bill lapses if it is not returned to the Lok Sabha Rajya Sabha within 14 days। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा बी। रूल ऑफ लैप्स का मतलब होता है whatever funds has been granted to the ministers, they can there is a period of like 1 year, 1 financial year के ही grant होता है, and if he is not able to finish that fund or utilize that fund for some productive works or for any work for that matter, or for the work that it has been allocated, then that particular money will be lapsed and it will return back to consolidated fund of India। उसी से related है rule of lapse। अब अगला चीज भी देखते हैं, देखिए all pending bill in parliament lapses in prorogation। देखिए पहला बात है prorogation में तो lapse होता नहीं है, that has to be dissolution, तो इसीलिए ये तो ऐसे भी गलत हो गया। क्यों गलत है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर बी है। दूसरा है द डिमांड फॉर ग्रांट इन अ मिनिस्ट्री लैप्सेस विद क्रिटिसिज्म। देखिए ये दिस इज एब्सर्ड स्टेटमेंट, कोई क्रिटिसाइज करेगा तो क्रिटिसिज्म तो होती ही रहती है अपोजिशंस में, जस्ट बाय क्रिटिसिज्म यू कैन नॉट जस्ट ग्रांट जो मिनिस्ट्री को देते हैं उसको आप लैप्स नहीं कर सकते हैं ना, क्रिटिसिज्म तो होता ही रहती है। अब डी में है अप्रोप्रिएशन बिल लैप्सेस इफ इट इज नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज। ये भी एब्सर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास 14 डेज का मैक्सिमम पावर है कि इट कैन स्टॉल द बिल,
It can keep the bill pending in Rajya Sabha for 14 days maximum. After that, it will be deemed as passed. 15th question और अगला क्वेश्चन देखते हैं. The expenditure charged on the consolidated fund of India comprises. देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है इन द सेंस कि कौन कौन से होते हैं. We have discussed this question maybe. अब देखिए एक पॉइंट डिस्कशन नहीं किया वो अभी करेंगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है. कंप्राइजेज पेंशंस पेबल टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट, डेप्थ चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल्स. क्या वो डेप्थ चार्ज होता है जो डेप्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिया हुआ है कहीं से, या सैलरी अलाउंसेज, पेंशन पेबल टू द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल. टेल मी द आंसर गाइज. इसका आंसर होगा ए. क्यों होगा आंसर ए? ये दोनों तो पहले भी डिस्कस किया है कि जो पेंशन होते हैं हाईकोर्ट के जज का, so that they can maintain their high standards in the sense कि high standard of morality and high standard of ethics वो maintain कर सके. इसीलिए जो है किसी के दबाव में ना आ सके, इन्फ्लुएंस में ना आ सके, इसीलिए उसकी पेंशन वगैरह जो है वोटेड बाय पार्लियामेंट नहीं होती है. दैट इज पेंशन पेबल टू हाई कोर्ट. और सैलरी अलाउंसेज जो कैग भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. तो ये दोनों का हमने देखा था. और ये भी होता है थर्ड, इनफैक्ट सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट कि जो भी डेप्थ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से ले रही है, कहीं से ले रही है, सी इट इज़ ऑन द रेपुटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इट इज, सो दैट्स व्हाई इट इफ आई टेकन सर्टेन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, राइट. इसीलिए डिस्कशन नहीं होगा. 16th देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट इज टू. क्यों लाया जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन, हमने डिस्कस किया है. ये कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, पहला ऑप्शन है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स. दूसरा है मेक ए कट इन द बजट प्रपोजल. कट इन द बजट प्रपोजल, क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, या टॉपल द गवर्नमेंट. क्रिटिसाइज करने के लिए, टॉपल करने के लिए. आंसर बताइए. इसका आंसर होगा सी, क्रिटिसाइज द पार्टिकुलर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. देखिए ये कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, ये तो क्वेश्चन आवर होता है इसके लिए, या 0 आवर होता है इन विच यू कैन कलेक्ट. तीसरा मेक ए कट इन द बजट प्रपोजल. बताइए इसके लिए क्या होता है. इसके लिए कट मोशन होता है, हमने डिस्कस किया. टॉपल द गवर्नमेंट इस डेमोक्रेसी में नॉर्मली डज नॉट हैपन. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनार्की. मोनार्क में होते हैं जहां लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी एक डिक्टेटरशिप में होता है ये सब. अब है कि 17th है मैच 1 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. अब देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 है. लिस्ट 1 में पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स है, दूसरा में इम्प्लीकेशंस है. पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स क्या है? डिवीजन, गुलेटिन मोशंस या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है. और लिस्ट 2 में है ब्रिंग अ डिबेट टू क्लोज. अब ये लिस्ट 2 बड़ा है. देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. आप लिस्ट 2 जहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये आपको याद नहीं होगा कि क्या है, मगर यहाँ से कुछ ना कुछ आप गेस कर सकते हैं. ये गेसिक टेक्निक्स में आप बता सकते हैं. तो देखिए इसको पढ़ते हैं. ब्रिंग अ डिबेट टू क्लोज. अब बताइए ब्रिंग अ डिबेट टू क्लोज, क्या यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो छोड़िए, दूसरा देखते हैं. फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द मेंबर टू द हाउस. अब पहले आप इसको देख लीजिए कि इसका ऑप्शंस क्या है, सो दैट यू गाइस कैन सॉल्व. ये ऑप्शंस है, अब देखते हैं. अब फॉर्मल प्रपोजल दूसरा है, फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द मोशन. ये देखिए फॉर्मल प्रपोजल जो कोई बनाया जाता है ना, वो मोशन में बनाया जाएगा. ये देखिए फॉर्मल प्रपोजल प्रपोजल मेड बाय मेंबर टू द हाउस, इसका क्या हो जाएगा? मोशन होगा. तो सी का है 2. अब देखते हैं सी का 2 कौन से ऑप्शन में है. देखिए सी का 2 या तो सी में है या डी में है. तो इसी दो में से कोई आंसर होगा. सिर्फ एक देख के आप अंदाजा लगा सकते हो. देखिए सी का 2 है तो यानी कि सी या डी में से कोई ऑप्शन होगा. तो ये मोशन का होगा, फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस. अनदर थिंग इज लाइक गुलेटिन. देखिए गुलेटिन का क्या है कि कंक्लूड, या तो ब्रिंग डिबेट टू क्लोज होगा या कंक्लूड डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स. अब देखते हैं बी का या तो 4 होगा या 1 होगा. आंसर में क्या दिया है? बी का देखिए 4 या 1, तो बी का होगा 4. अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी का 4 है और सी का 2 है. तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर. देखिए दूसरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं हुआ. जस्ट बिकॉज यू नो द टू ऑप्शंस, यू नो फ्रॉम हियर, यू कैन इजीली गेस द आंसर फ्रॉम हियर. तो इसीलिए आप ये टेक्निक यूज़ करें. सबसे पहले इधर देखें कि क्या है और फिर मैच करते जाएं तो आसान हो जाता है. बाकी भी देख लेते हैं. दो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है. देखिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ये रिलेट टू इंटरप्रिटेशन और द इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ द हाउस. देखो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो होता है, इट्स ब्रॉट इन पार्लियामेंट बाय द अपोजिशन पार्टी. अपोजिशन पार्टी लाती है व्हेन इट सीज दैट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और ए का है 5, मोड ऑफ अराइविंग एट डिस्कशन, डिसीजन को बोलते हैं डिवीजन. ये डिवीजन भी एक तरीका है कि बजट के डिस्कशन के टाइम में होता है, या नॉर्मल बिल जब पास करते हैं उस टाइम में भी होता है. 18 क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेज ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट. अब देखिए बजट पास करने के लिए सबसे कौन सा होता है, आप लोग देखिए. अब इसको डिस्कस करते हैं. देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे बाद में क्या होता है, अगर आप बजट का आपको आइडिया है तो देखिए सबसे बाद में फाइनेंस बिल आता है. तो फाइनेंस बिल देखिए किस में है, फाइनेंस बिल यहाँ है और फाइनेंस बिल यहाँ है. तो ए और बी में से कोई आंसर होगा.
और सबसे पहले डिस्कशन होता है। तो जब इतना लेंदी क्वेश्चन कोई हो ना, उसका अंतिम और आगे देखिए, सबसे पहले लास्ट में देखिए क्या है और आगे देखिए क्या है, थोड़ा आइडिया रखिए। तो फाइनेंस बिल लास्ट में आएगा, तो यानी ए बी में से आंसर होगा। और सबसे पहले डिस्कशन होगा, ये देखिए जनरल डिस्कशन होगा या जनरल वोटिंग इन डिमांड फॉर ग्रांट होगा। तो ऑब्वियसली पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही वोट करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज बी 18 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, but these kind of questions are generally being asked these years, so it forms become important. Which of the following is not correctly match? कौन सा इसमें जो है करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, देखिए महाराष्ट्र, इसका बिहार में ये है, वो आंसर इसका बिहार का 18 है। अगर ये नहीं सॉल्व करते हैं इट्स ओके, बट होना चाहिए ये। तो लक्ष्मीकांत में जाके देख सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा कहाँ होता है। ये आप लोग बताइए कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा इज डिटरमाइंड इन विच पैरामीटर्स। हम जानते हैं कि हर एक स्टेट से वेदर बताइए क्यों होता है, ऑन विच पैरामीटर्स। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इट। तो बिहार से 16 मेंबर हैं शायद, 18 मेंबर नहीं है। आप लोग देख लीजिए, या अगर आप बताएंगे तो आई कैन ऑल्सो अपलोड इट ऑन माई चैनल। 2-3 पेजेस जो लक्ष्मीकांत के हैं, आई कैन अपलोड इट सो दैट यू कैन सी टू इट। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या अपलोड करना है उसको। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंसिडर टू बी एन इंडिकेटर ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस किस किस कारण से नहीं होगा। ठीक है, पहला है एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड, एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड। दूसरा है वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इज नॉट कैरिड। तीसरा है कट मोशन ऑन मनी बिल इज पास्ड, सेंसर मोशन इज पास्ड। बताइए किस केस में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बोल रहा है नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, मैं देता हूं, आंसर होगा ए, एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड। देखिए एडजॉर्नमेंट मोशन हमने देख रहा है, ऊपर से डिस्कस करते आए हैं कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस में कहा जाता है। तो यू कैनॉट जस्ट डिसॉल्व द पार्लियामेंट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि यू कैनॉट जस्ट डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन द pretext दैट एडजॉर्नमेंट मोशन हैज बीन कैरिड। दूसरा है वोट ऑफ थैंक्स। तो देखिए वोट ऑफ थैंक्स जिसका क्या है, वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है कि हर एक सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड ईच सेशन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर जो होता है, प्रेसिडेंट ये डिस्कस करता है, वोट ऑफ थैंक्स लेके आता है, एंड इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। होना ही चाहिए, नहीं होगा तो मतलब रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब व्हाट डज इट मीन्स दैट लेजिस्लेचर हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑन द एग्जीक्यूटिव, दैट्स व्हाई एग्जीक्यूटिव विल हैव टू रिजाइन। दूसरा है कट ऑन मनी बिल। आपने देखा था कट मोशन होता है, 3 तरह के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी, इकोनॉमी और टोकन कट मोशन। अब डिस्कशंस आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जाके, या मैं वीडियो बना सकता हूँ उस पर, अगर आप लोग बताएं तो। अब देखिए कि कट ऑन मनी बिल इज पास्ड। मनी बिल में अगर कट पास होगा, व्हाट डज दैट मीन? मनी बिल में अगर कट मोशन पास होता है, इट मीन्स कि लेजिस्लेचर हैज़ लॉस्ट फेथ। कट मोशन मतलब वट एवर यू आर टेलिंग, वी विल बी डिक्रीजिंग दैट मनी, जो भी आप बोल रहे हैं हम उसको घटा देंगे। तो उसमें क्या होगा, कट व्हाट डज दैट मीन कि लेजिस्लेचर हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द एग्जीक्यूटिव। सेकंड थिंग इज सेंसर मोशन इज पास्ड, यहाँ पे भी नॉन कॉन्फिडेंस टाइप ही होता है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। 21 देखते हैं, हाउ मच इज द कोरम ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कोरम क्या होता है बताइए सबसे पहले, कोरम कितना होता है? 1/2 होता है, या 1/3 होता है, 2/3 होता है, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है। Quorum is nothing but the minimum number of members that should be present in the house for the proceeding of the house to take place, and the quorum is in 1/10, that is including of the speaker or presiding officers of the parliament। देखिए 1/10 होता है, बताइए आंसर, ये 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है। तो लोकसभा का होगा 55 और राज्यसभा का आपका कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर 1/10 हो गया। और 22 होता है आफ्टर ए मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा। मनी बिल अगर लोकसभा में पास होता है, ट्रांसमिटेड राज्यसभा में गया, द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा of the has to be accepted by the within 14 days from the receipt of recommendations and that get them incorporated in the bill। क्या बोल रहा है कि लोकसभा से राज्यसभा में गया तो 14 दिन के अंदर जो रिकमेंड करेगा राज्यसभा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोकसभा को। दैट इज इट मैंडेटरी फॉर लोकसभा टू एक्सेप्ट वट एवर ऑन मनी बिल राज्यसभा है सजेस्टेड। दूसरा है मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज राइट। देखिए कोई मैंडेटरी नहीं है, वट एवर द राज्यसभा इन केस ऑफ मनी बिल लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर एंड लोकसभा इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वट एवर द सजेशन राज्यसभा देगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ ये सही है कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोअर हाउस। इसका रीजन बताइएगा आप लोग आंसर में, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए, वाई इट इज, क्या ये पॉपुलर हाउस है इसलिए या कोई और रीजन भी है, तो आप बताइए। अब 23rd क्या है,
A bill is deemed to a money bill if it contain only provisions dealing with the, देखिए बिल जो है मनी बिल कब कहलाएगा, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 110। क्या ये प्रोविजंस कौन कौन से हैं, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस, रेगुलेशंस ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, अगर बोरो कर रही है मनी, या एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या कस्टडी ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कब होगा बिल मनी बिल, बताइए। इसका आंसर मैं देता हूँ, आंसर है डी, सारे केसेस में बिल जो है मनी बिल डीम होगा। देखिए ये इट इज मेंशन इन आर्टिकल 1110 एंड अगर आप कोई टैक्स लगा रहे हैं या बोरो कर रहे हैं मनी, गवर्नमेंट भी बोरो कर रही है तो मनी बिल लाना पड़ेगा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कहीं से भी ले रहे हैं तो मनी बिल होगा, लाना पड़ेगा। अब देखिए 24th क्वेश्चन है अपना, द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। अब देखिए एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन राज्यसभा को कब होगा, अप्रूविंग ऑफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, द क्रिएशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। बताइए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा डी। सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देखिए, अप्रूव्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज डन बोथ द हाउस हैज इक्वल पावर, तो एक्सक्लूसिव नहीं है उसका, एक्सक्लूसिव पूछा है। दूसरा क्रिएशन एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, ये भी ऑर्डिनरी बिल से होता है, तो बोथ द हाउस हैज इक्वल पावर्स, दोनों हाउस को इक्वल पावर है। तीसरा है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सी हियर आल्सो द बोथ द हाउस मिलके वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है, ऑल्दो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बट इन्वॉल्वमेंट में दोनों हाउस का पावर होता है, मतलब दोनों हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। राज्यसभा कैन ओनली रिमूव कर सकती है, रिजोल्यूशन ओनली राज्यसभा ला सकती है, ठीक है। और है ऑथराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, यहाँ है सिंस राज्यसभा इज आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये आंसर सही होगा। एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर इफ पार्लियामेंट हैज टू मेक एनी, पार्लियामेंट कैन जनरली मेक लॉज ऑन सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इट कैन नॉट मेक लॉज ऑन विच लिस्ट, बताइए, स्टेट लिस्ट में नहीं बना सकता है वो, तो इस कारण से क्या होगा कि ये होगा आंसर डी, तो इसलिए ऑथोरिटी राज्यसभा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पार्टिकुलर लेक्चर का, कि what is the maximum period that shall not intervene between the last sitting of the one session and the date appointed on the first sitting of the next session each house of the parliament, तो कितना मैक्सिमम गैप होना चाहिए, पहले हम देख लिए 4 महीना, 5 महीना, 6 मंथ और 8 मंथ। आंसर इसका बताइए, इसका आंसर होगा 6 मंथ। सो गाइज प्लीज कमेंट and tell me that whether you like this lecture or not, or if there is certain improvement that I have to make, so please tell me that, and that's all for today. I will be soon coming up with the second lecture, so please tell me whether you like this video or not, or do you like me to make similar videos for any other subject also if you want me to make, so please tell in the comment section. Thank you guys.